Welcome to the series of video lectures on C programming language. Today's topic is basically the data types in C programming language. Before proceeding, we should revise the last class. In last class, in the basics of C programming, we have discussed character set as well as the variables. In variables, what is variable basically? It is just a named memory location to store some data. Then we have discussed the rules for naming the variables. What are the rules? The length of the variable name should be less than 8 characters. It should be meaningful. Special symbols are not allowed, but that there is an exception that underscore can be used. Then alphanumeric characters can be used for naming the variables, but in that case it must not start with a digit. Next rule was the character set of C language is case sensitive, as well as we cannot use the keywords for naming the variables. These were the simple rules for naming the variables. And now today's class we will discuss data types. So what we have covered up till now, we have discussed character set, we have discussed variables, and now in today's class we will discuss data types. So data types. This is just the classification of data types. There mainly are of two types of data types. One is primary data type, it is also known as the primitive data type, and other type of data types is derived data type. Okay, before starting, we must discuss something about data types. What is data type basically? The data type simply reflects the type of data which can be stored in a variable. In programming, while programming, we will define or declare some variables, and variables are used to hold or store some data. Then somehow we must have to specify which type of data we can store in the memory location or variable, and that type actually defined by the data types. Again, the data type specifies two things, that is the type of data which can be stored in the memory location or the variable, as well as the size or memory requirement or the memory occupancy is also defined by the data type. Now, before discussing the significance of data type, we must have a look on the types of data types. As we have already said that दो type के data types हैं आपके पास, mainly primary data type, it is also known as primitive data type, और दूसरे type के जो data types हैं, they are the derived data types. आज हमें mainly प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में बात करना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करना है, और जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स है जो कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम, इन्हें हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे. अभी के लिए हमें जो डिस्कस करना है दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप. ना, इन द प्रिमिटिव डेटा टाइप देयर आर फोर बेसिक टाइप्स. वन इज कैरेक्टर डेटा टाइप, अनदर इज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड. वैसे भी हम अपने आसपास यदि देखें, मेनली जो हमारे पास डेटा होता है वो या तो कैरेक्टर टाइप का होता है या नंबर टाइप का होता है. यदि हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कैरेक्टर टाइप का और नंबर टाइप का. नाउ दिस नंबर टाइप कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इंटीजर टाइप्स एंड अनदर इज फ्लोटिंग पॉइंट. इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, दशमलव के बगैर, और फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें कि दशमलव होगा. तो इन ऑल देखा जाए मेनली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है दे आर ऑफ द टाइप कैर, integer and floating point. That is mentioned over here. So there are four basic types: character, integer, floating point and void. Void पर अभी हम लोग आते हैं. Now each type among character, integer, each type itself is of two types. Now what does it mean? These two types are signed and unsigned. What does it mean, signed and unsigned? As name suggests, signed data type will hold or will allow to store negative as well as positive values in the variable. On the other hand, unsigned, as name indicates, unsigned variable will allow only positive values to store in the variable. For example, to understand that, we will discuss this int, that is the normal type, and then we will cover the whole one. Now int data type
This is of two types again, that is signed and another is unsigned. If we write signed int or int, that is one of the same thing. In other words, यदि हम कहें by default each type is of the type signed. हर टाइप यदि कुछ भी ना लिखा हो वो क्या होता है, साइन टाइप का होता है. मतलब वो पॉजिटिव वैल्यूज भी अलाउ करेगा और नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउ करेगा. चलिए देखते हैं आगे. मान लेते हैं साइंड इंट या इंट दोनों की रेंज की बात करें कि किस रेंज तक के नंबर्स ये स्टोर कर सकता है. तो द रेंज इज -32768 टू +32767. यहां मेंशन भी किया हुआ है. इंटीजर में दिस इज इंटीजर, either write int or signed int. The range is -32768 to +32767. Means if I define an integer variable or signed int variable, I can store values in the range of -32768 to +32767. That is negative values as well as the positive values. But if I define a variable as unsigned int, then what will happen? Now it will never allow us the negative values, only positive values will be stored in this type of variable. Now what should be done? Let us say this is the number scale, this is 0, this will be +32767, and let us say this is -32768. So this is the range of int or signed int. It allows negative as well as positive. Now if we talk about the unsigned int, the negative range will be extended to the positive side. That is, this range will be extended to this side, and hence this value will be added to this one, and the total range will be 65535. Means if we talk about the signed range, it will be -32768 to +32767. But if we talk about unsigned int, the range will start from 0 to 65535. I should mark that. That is, this is the range of signed int or int, and this will be the range of unsigned int. Like that. So 0 to 655. Now how this value is evaluated? Basically just add -32768, that is 32768 to this 32767, we will get 65535. So the range of unsigned int is 0 to 65535. Range of signed int or int simply is -32768 to +32767. I think that is clear. So in case of signed, negative and positive both type of values will be allowed, but in unsigned only positive values will be allowed. The negative range of signed will be extended to the positive range. That is the unsigned int. Now in character type, again there are two types, that is signed char or char. The character variable will consume 1 byte of memory, that is 8 bits. The range will be -128 to +127. As we have discussed just now, that was in case of integer. Now this is the case of character. So char में दो type, signed char या char, one and the same thing. The range will be -128 to +127, and it will consume 1 byte of memory or 8 bits. Similarly, another character type will be unsigned char. Again the size will be 1 byte or 8 bits, but the range will be in the positive direction only, as we have discussed just now. The range क्या हो जाएगी? 0 to 255. कैसे? -128 to +127. Now extend this in the positive direction, it will go to 255, and that is the range of 0 to 255 for signed character.
I think that is clear to you. Now the next type is of the type integer. In integer there are three classifications. One is short int, another is int, and the another one is long int. There are three variations. Now the short int will consume 1 byte of memory. Again, short int is of two types, short int or either signed short int. Again, the signed keyword is there. The range will be -128 to +127, and the another type will be unsigned short int, which will allow only positive values, and the range will be in the positive direction, that is from 0 to 255. The second type of integer is actually int, which will consume 2 bytes of memory. Again, it has two types. One is int by default or signed int, one in the same thing, and the range is sorry, -32768 plus 32767. The second variation of int is unsigned int, that is, it will allow the positive values only, we have discussed just now, that is the range. And the third variation of integer is long int, which will consume 4 bytes of memory. Again, it has two variations. One is long int by default or signed long int, one in the same thing. The range is this one, this is a big number. And the second variation is unsigned long int, and this is the range, and obviously the range will be in positive direction only. This was the classification of character and integer data type. Now, what is the difference between int and long int? Basically, the difference is of the range. यदि मेरे पास इस रेंज का कोई डेटा है या इस रेंज का कोई डेटा है तो वो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो पाएगा, पर यदि इससे ज्यादा इंटीजर वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है तो आई मस्ट मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग इंट, एंड दिस इज द बिग रेंज. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी is floating point. The keyword which will be used as float. Now it has three variations. One is float, which will consume 4 bytes of memory. This is the range. Another is the double. The size will be 8 byte, means if we define a double variable, it will consume 8 bytes of memory. And the last variation is long double. This is long decimal value, and it will consume 10 bytes of memory. This is char, int and float. Now one more type of primitive data type, that is void. Void means no value. Normally this data type is used in case of functions. We will discuss it on next classes. Whenever the function return nothing, the return type of that function is made as void. So this is all about the primitive data type. And now, before closing this topic, one important discussion I want to make with you, and that is what is the significance of data type. मतलब यदि डेटा टाइप नहीं होते तो क्या होता, वो हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे. ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स आपको दो चीजें बताएगा. क्या पहली चीज क्या थी? टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन और वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होनी है, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर होनी है. दूसरी चीज डेटा टाइप क्या बताता है कि जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं उसको कितनी मेमोरी लगनी है, मीन्स मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा. तो सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे कि यदि डेटा टाइप नहीं होते तो क्या होता, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दो एस्पेक्ट्स की बात की थी, तो मैं दोनों के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिए इस बात को. फर्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ किचन. लेट्स से मम्मी किचन में काम कर रही है और मार्केट से उनने बहुत सारे कंटेनर्स ले आए हैं. लेट अस टेक 4 कंटेनर्स. एक में शक्कर रखी हुई है, एक में चाय पत्ती रखी हुई है, एक में नमक रखा हुआ है, एक में जीरा रखा हुआ है. अब उन्हें चाय बनानी है. चूंकि मम्मी किचन से बहुत फेमिलियर है, सेल्फ में जो रखे हुए ये 4 कंटेनर्स है, यदि उन्हें चाय बनानी है तो वो इस कंटेनर में सिर्फ वही चीजें डालेंगी जिनकी जरूरत है चाय बनाने के लिए. चूंकि वो फेमिलियर है, वो यहां से शक्कर और चाय पत्ती के कंटेनर उठाएंगी और बर्तन में
यूज करेंगे। क्या होगा यदि मैं चाय बनाने जाऊं, क्योंकि मुझे चाय बनाना नहीं बनती और ये बहुत सारे कंटेनर मुझे यहां दिखेंगे, तो क्या होगा मुझे इन सारे कंटेनर्स को एक एक करके ओपन करके देखना होगा और फिर डिसीजन लेना होगा कि इनमें से किस कंटेनर के कंटेंट्स मुझे चाय बनाने के लिए यूज में आने वाले हैं। तो मैंने पहला बर्तन देखा, इसमें नमक है, तो मैं इसे फिर से क्लोज कर दूंगा, वापस रख दूंगा। मैंने दूसरा कंटेनर उठाया, ओपन किया, देखा इसमें शक्कर है, मैंने उसको यूज किया, वापस रख दिया। मैंने तीसरा कंटेनर उठाया, देखा उसमें मिर्च थी, मैंने फिर उसे बंद करके वापस रख दिया, एंड सो ऑन। हो क्या रहा है, जब मम्मी काम कर रही थी तो वो फेमिलियर थी, चाय बनाते समय उनका हाथ सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती और शक्कर के डिब्बे पे जाएगा। लेकिन यदि मैं चाय बनाऊंगा तो मुझे सारे डिब्बे, सारे कंटेनर एक एक करके ओपन करके देखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि चाय पत्ती और शक्कर किन डब्बों में है या किन बॉक्सेस में है, सिर्फ उन्हीं को मुझे यूज करना है। नाउ इन बोथ द केसेस, जब मम्मी काम कर रही होगी चाय जल्दी बन जाएगी, लेकिन जब मैं चाय बना रहा होऊंगा तब मुझे बहुत सा समय तो ये चेक करने में लग गया कि चाय पत्ती और शक्कर किस कंटेनर में रखी हुई है। नाउ दैट इज द डेटा टाइप कम्स इन द पिक्चर। What is the solution or what may be the solution for this situation? Solution ये है कि जिस दिन मम्मी ने कंटेनर बाजार से, मार्केट से परचेज करके लाए थे, यदि उसी समय मैं इन कंटेनर्स पे कुछ स्टिकर लगा देता, जैसे यहां एक स्टिकर लगा के मैं लिख देता शुगर, यहां स्टिकर लगा के मैं लिख देता सॉल्ट, यहां स्टिकर लगा के मैं लिख देता टी, और यहां मैं स्टिकर लगा के लेट्स से कुछ सब्जी। अब क्या होता, मम्मी को तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मैं जाऊं या कोई और भी पर्सन आए जो चाय बना सकता है, बनाना चाहता है, अब क्या उसे इन कंटेनर में झांक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई? बिकॉज क्योंकि पहले से हमने यहां पर स्टिकर लगा दिए हैं। अब क्या होगा, मैं सीधे इस कंटेनर को उठाऊंगा, शुगर यूज करूंगा, मैं सीधे इस कंटेनर को यूज करूंगा, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल टाइम लगने वाला है आपकी चाय बनाने के लिए, वो टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज द डेटा टाइप? द डेटा टाइप इज द स्टिकर which is pasted on the container that is variable. Container is a variable. Variable is a container basically. मेरे पास 5 वेरिएबल है, उन पांचों वेरिएबल में अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर्ड है, मुझे नहीं पता, यदि मैं अवेयर नहीं हूं तो क्या होगा। वी नो द एल्गोरिथम्स। यदि मुझे इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, एल्गो में कुछ और एल्गो यूज होगा। यदि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन या डिविजन करना है, एल्गो कुछ और यूज होगा। मीन्स जिस भी एल्गोरिथम को मुझे यूज करना है, उसमें जिस टाइप के डेटा को आपको यूज करना है, इट मस्ट बी नोन इन एडवांस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड कि विच एल्गोरिथम इज टू बी यूज, बिकॉज द इंटीजर एल्गोरिथम विल बी डिफरेंट, फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम विल बी डिफरेंट. That's why we must know the type of data which is available to us. Then only we will decide which algorithm is to be applied. और वो चेक करने के लिए मुझे वेरिएबल्स को झांक झांक के देखना होगा. उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उससे बचने के लिए डेटा टाइप्स का यूज किया जा सकता है, ये बताने के लिए कि ये वेरिएबल्स हैं और ये इंट या फ्लोट टाइप के या कैरेक्टर टाइप के. जैसे आप पहले से बता दें ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो आपको फिर चेक करने की जरूरत नहीं होगी कि इसमें इंटीजर वैल्यू है या नहीं. 101% उसमें किस टाइप की वैल्यू होगी? इंटीजर. जैसे कि स्टिकर लगा दिया, इस बॉक्स में स्टिकर लगा दिया, ये बॉक्स वेरिएबल है और ये शुगर लिखा हुआ है, दैट इज इट्स डेटा टाइप ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन दिस कंटेनर. दैट इज द सिग्निफिकेंस. तो डेटा टाइप मेंशन करने से एग्जीक्यूशन, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस. दूसरी बात जो हमने कही थी डेटा टाइप से रिलेटेड, दो चीजें मैंने कहा था, दैट इज टाइप एंड अनदर थिंग इज साइज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइज. वी हैव डिस्कस्ड द टाइप. What is size? What is the significance with respect to size? Again, another example. मान लेते हैं उससे भी पहले मेमोरी, जो वेरिएबल जहां बनते हैं, जिस हम साइज की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द साइज ऑफ वेरिएबल और द मेमोरी ऑक्यूपेंसी फॉर द वेरिएबल. जो वेरिएबल बनते हैं वो रैम में बनते हैं, और रैम जो होती है वो
कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू अदर मेमोरी अरेंजमेंट्स। सो जब भी हमें वेरिएबल बनाना होगा तो रैम में बनेगी, चूंकि रैम कॉस्टलियर है तो हमें उसका प्रॉपर यूज करना होगा। उसके लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज करेंगे। वो कैसे? मान लेते हैं मैंने घर पर 10 लोगों को खाने के लिए आमंत्रित किया, डिनर के लिए। इफ आई डू नॉट नो ये जो 10 लोग आ रहे हैं वो बड़े हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं, तो हम किस हिसाब से खाना बनवाएंगे? मेरे ख्याल से भारतीय परंपरा के हिसाब से हम 10 बड़े लोगों के हिसाब से खाना बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक दोहा भी है, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए, इस टाइप से। तो मैं 10 बड़े लोगों के हिसाब से खाना बनवा के रखूंगा। लेकिन बाद में पता लगा उन 10 लोगों में एक पैर दादा दादी का है और बाकी जो 8 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे आस पड़ोस के वो आ गए। क्या होगा इससे? इससे यह होगा कि जो 10 लोगों का मैंने खाना बना के रखा है वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारा खाना उसमें से क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाने वाले सिर्फ 2 लोग और बाकी 8 बच्चे। उल्टा प्रोसेस करते हैं। मान लेते हैं मैंने ये जो 10 लोगों का खाना बनाया वो 10 बच्चों के हिसाब से खाना बनाया और बाद में पता लगा कि 10 जवान खाना खाने आ गए। अब क्या होगा? अब शायद 10 के 10 खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा पाएंगे। दैट विल बी इनसफिशिएंट फूड विल बी देयर। दोनों ही केस में आपके पास प्रॉब्लम हुआ। एक केस में क्या हुआ? आपका खाना वेस्ट हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ? आप सभी लोगों को खाना नहीं खिला पाए। नाउ रिलेट दिस विद दी मेमोरी। यदि मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कहा गया, 10 वेरिएबल, एंड इफ आई डू नॉट नो द टाइप ऑफ डेटा विच इज कमिंग और विच इज टू बी स्टोर्ड, देन मैं ये समझ के कि मैक्सिमम जो भी डेटा आ जाए मैं उसे स्टोर कर पाऊं, अज्यूमिंग दैट द मैक्सिमम टाइप इज इन दिस केस फ्लोट, तो मैं कितनी मेमोरी एलोकेट करूंगा? दैट इज 10 into 4, दैट इज 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी आई विल एलोकेट विथ रिस्पेक्ट टू इंट, फ्लोट एंड कैर। कैर इज 1 बाइट, इंट इज 2 बाइट एंड फ्लोट इज 4 बाइट। तो मैं फ्लोट का यहां पर एग्जाम, दैट इज ज्यादा से ज्यादा मेमोरी एलोकेट करके रखना चाह रहा हूं ताकि 10 वैल्यूज जो आप मैं स्टोर कर पाऊं। तो आई हैव एलोकेटेड 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी, लेकिन बाद में पता लगा जो 10 वैल्यूज आ रही हैं वो कैरेक्टर टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज। तो इन 40 बाइट्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ 10 into 1 दैट इज 10 बाइट्स यूज कर पाऊंगा और रिमेनिंग 30 बाइट्स विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। उल्टा केस करते हैं। मान लेते हैं मुझे 10 वेरिएबल बनाने थे और 10 वेरिएबल मैंने कैरेक्टर टाइप के बना दिए, अलोकेटिंग 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी, लेकिन बाद में पता लगा कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो फ्लोट टाइप की है, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट बनी 40 की, मींस 30 बाइट्स ऑफ मेमोरी मेरे पास इनसफिशिएंट मेमोरी होगी। मैं ये सारी वैल्यूज यहां पर स्टोर ही नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादा बेहतर क्या होता? ज्यादा बेहतर यह होता कि हम हर टाइप के डेटा को लगने वाली मेमोरी पहले से डिफाइन कर दें, जिससे यह होगा कि पहले से ही हमें पता होगा कि यदि 4 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो हम 4 इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे, दैट इज 4 into 2 दैट इज 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड सो ऑन। तो यहां पर मेमोरी चूंकि महंगी है, रैम चूंकि कॉस्टलियर है एज कंपेयर टू, इसीलिए हर टाइप के साथ डिफाइन कर दिया गया कि यदि आप उस टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो कितनी मेमोरी लगेगी या जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। The derived data types we will discuss in the upcoming videos. Please share, like and comment and subscribe my video channel for programming languages. Thank you.